Ignited Minds Tutorials has taken the initiative to create a series of educational videos to cover the chapter of climate for Class 9 CBSE students studying social science. The videos are a comprehensive explanation of the various topics included in the syllabus, providing a deep insight into the concepts related to climate. These videos are designed to enhance the understanding of students and aid them in their exam preparation. The topics covered include the various types of climate, factors influencing climate, and the impact of climate change. With detailed explanations and illustrative examples, these videos aim to make learning about climate an engaging and enriching experience for students. By providing easy access to these educational resources, Ignited Minds Tutorials is playing a crucial role in helping students grasp the important concepts related to climate and environmental studies. These videos not only supplement classroom learning but also serve as a valuable revision tool. Overall, this initiative by Ignited Minds Tutorials is a commendable effort in promoting knowledge and understanding of the chapter of climate for Class 9 CBSE students. All right, oh, Bacha Party, in 9th standard, we will basically start with the geography chapter of climate. So, what is basically climate? Climate होता क्या है? या मैं अगर आपसे ये पूछूं कि weather से कैसे different होता है? How is it different from the weather? नहीं, weather is temporary. Weather आपका day to day होता है. Climate आपका permanent मतलब नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं climate for a longer period of time होता है. जैसे मानसून एक क्लाइमेट है, ऐसा नहीं है कि मानसून में हर दिन बारिश होती है. हो सकता है किसी दिन बारिश ना हो, उस दिन का वेदर सपोर्टिव ना हो, लेकिन क्लाइमेट रहेगा. ठीक है. सो इसी तरह से आपका क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंसेस होते हैं. ओके, सो क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस. तो क्लाइमेट बेसिकली है क्या? अगर आप देखोगे, क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस. तो वेदर में जो भी आपके वेरिएशंस होते हैं कंडीशंस में, क्लाइमेट भाई साहब उसका सम टोटल होता है ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो बहुत बड़े पैमाने पे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू विल नोटिस दिस. ठीक है. सो ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट. मोर देन 30 ईयर्स. हम देखो क्लाइमेट का कंपाइलेशन जब करते हैं तो लगभग 30 सालों तक करते हैं. मतलब कैसा है कि 30 सालों तक ऐसा चला आ रहा है, तभी जाकर हम बोलेंगे कि यहाँ का क्लाइमेट ये है. ठीक है. ड्यूरिंग द सर्टेन पार्ट ऑफ द ईयर. What is weather? Weather is the day-to-day conditions of a particular place. एक day-to-day condition है. हॉटनेस, कोल्डनेस, ह्यूमिडिटी, ये सारे जो day-to-day conditions है, आपको देखोगे आपको मोबाइल में अभी तो आने लगता है या आपके लैपटॉप में भी आएगा. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली वेदर कंडीशंस. कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना वैसा मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स हैं. सो दीज आर day-to-day conditions of a particular place. When I say it is very cold today, what am I referring to? Weather or climate? I am referring to the weather. Okay, I am referring to the weather. It has been very hot since yesterday. Again, I am referring to weather. It has been raining since a week. Okay, so all these statements are about weather. Okay, तो ये आपके weather के हिसाब से. So weather refers to the state of atmosphere of an area at any point of time. क्या atmosphere का state है एक particular time पे, और ये time एक दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, लगभग एक हफ्ते का भी हो सकता है. ठीक है. तो ये आपका स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है. The elements of weather and climate are the same. ये वाला लिख लीजिए basically. So weather refers to the state of atmosphere. So what is weather, बच्चा पार्टी? Weather refers to the state of atmosphere over an area at any point of time. Weather refers to the state of atmosphere over an area at any point of time. एक एरिया में at any point of time भाई साहब क्या है? The elements of weather and climate are the same. तो पहले क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ये सब आपके भाई साहब वेदर कंडीशंस हो जाएंगे. ठीक है. तो क्या क्या आपके भाई साहब एलिमेंट्स ऑफ वेदर? देखो, जिन चीजों से आपका वेदर बना है, जिन चीजों से आपका वेदर बना है और जिन चीजों से आपका क्लाइमेट बना है, दे बोथ आर द सेम. तो किन चीजों से आपका वेदर बना है? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड और ह्यूमिडिटी. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बोथ वेदर एंड प्रेशर, वेदर एंड क्लाइमेट. ठीक है. टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी. प्रेसिपिटेशन भी. ठीक है. प्रेसिपिटेशन भी. ओके. You may have observed that weather conditions fluctuate very often within a day. ऊपर नीचे होते हैं भाई साहब. सुबह बहुत ठंडी रहेगी, दोपहर के टाइम पे गर्मी रहेगी, ऐसा होता है. ठीक है. वेदर कंडीशंस which fluctuate often within a day, but there is some common pattern over a few weeks or months. ठीक है. कॉमन पैटर्न से डेवलप हो जाता है. On the basis of generalized monthly conditions, the year is divided into seasons.
सच एज विंटर, समर एंड रेनी। ठीक है, तो जनरलाइज कंडीशन होते हैं, इसको लिख लीजिए भाई साहब। ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली कंडीशंस। जनरलाइज मंथली कंडीशंस मतलब क्या हो जाएंगे भाई साहब? मॉनसून का एक क्लाइमेट हो जाएगा, ठीक है, देन समर का एक क्लाइमेट हो जाएगा और विंटर का एक क्लाइमेट हो जाएगा। ये सब जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होंगे। जैसे हमारे यहाँ पे मानसून बहुत सिवियर होता है, मानसून बहुत सिवियर होता है मतलब लगभग बहुत अच्छी बारिश होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नॉर्थ में नहीं होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली कंडीशंस द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजंस सच एज विंटर, समर एंड रेनी, ठीक है। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। तो पूरे, ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वेटोरियल क्लाइमेट। वेयर डू यू सी द इक्वेटोरियल क्लाइमेट? ऑब्वियसली नियर द इक्वेटर। तो नियर द इक्वेटर जितने भी कंट्रीज आते हैं या उनके पार्ट्स आते हैं, आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिल जाएगा। थोड़ा बहुत इंडिया में भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट आप एक्सपीरियंस करते हैं। यू स्टेइंग इन मुंबई, यू आर एक्सपीरियंसिंग इक्वेटोरियल क्लाइमेट। काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बारिश काफी ज्यादा है, ठीक है, ये सारे क्लाइमेटिक चेंजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। तो द वर्ल्ड इज डिवाइडेड, ये हो गया मानसून क्लाइमेट। देखो यहाँ पे आपका मानसून क्लाइमेट ब्लूइश एरिया, ये आपका डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। आपको ज्यादा करके डेजर्ट, जितना आपका इक्वेटर से दूरी दूरी बढ़ती रहेगी उतना आपका डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता रहेगा। और जितना आप नॉर्थ या साउथ की तरफ जाते रहोगे उतना आपका बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता रहेगा, क्योंकि वहां पे स्लांटिंग रेज ऑफ सन है। इक्वेटर में डायरेक्ट रेज ऑफ सन है, डायरेक्ट रेज ऑफ सन के चलते क्या हो रहा है, एकदम सबसे ज्यादा हीट भी आ रहा है। और सबसे ज्यादा हीट के चलते क्या हो रहा है, जितना भी सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स हैं, सबसे ज्यादा भाई साहब आपका यहाँ पे वेपर भी बन रहा है। और सबसे ज्यादा वेपर के चलते यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश भी हो रही है, ठीक है। तो एक सर्कुलेशन में है, ठीक है। सो इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट, एल्पाइन क्लाइमेट। आपका देखो एल्पाइन क्लाइमेट, एल्पाइन क्लाइमेट मतलब ये यहाँ पे माउंटेनियस एरियाज हैं जिनको हम एल्पाइंस बोलते हैं, उनके वजह से क्लाइमेट है, ठीक है। तो मानसून क्लाइमेट देखो ये वाला मानसून क्लाइमेट है। और इंडिया में ज्यादा करके, सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। अगर आप देखोगे ज्यादा करके जो रीजन है आपका इंडिया में, ये आपका मानसून टाइप है। सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। इसको लिख लीजिए भाई साहब, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप क्लाइमेट। हो गया। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह का क्लाइमेट कहाँ पे मिलता है भाई साहब? आपका मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट में आपको इस तरह का क्लाइमेट मिल जाएगा एशिया में। Despite an overall unity in the general pattern, there are precipitable regional variations in climatic conditions within the country. तो आपके पास साहब प्रेसिपिटेशनल मतलब आपका जो प्रेसिपिटेशन है, मतलब वाटरफॉल, ठीक है, वाटरफॉल या रेन जो है उसमें आपको वेरिएशंस मिलेंगे कंट्री में, ठीक है। डिस्पाइट द प्रेसिपिटेबल रीजन वेरिएशंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री, लेट अस टेक टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो हम भाई साहब दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट इन इंडिया। एक हो गया आपका टेम्परेचर, मतलब मैक्सिमम मिनिमम कितना रहता है, और दूसरा है प्रेसिपिटेशन, मतलब कितनी बारिश होती है, ठीक है, कितनी बारिश होती है। ओके, एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन, ठीक है। रीजनल वेरिएशंस इन समर, द मर्करी ओकेशनली टचेस 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। कहीं कहीं पे राजस्थान में वैसा 50 डिग्री या उसके भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो वेरी हॉट, सुपर हॉट, ठीक है। वेराज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन फलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर, यही इनका मैक्सिमम है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इससे ऊपर जाता नहीं है समर में, ठीक है। So whereas it may be around 20 degrees centigrade in Palgam in Jammu and Kashmir. On a wintry night, the temperature in Dras in Jammu and Kashmir may be as low as -45. द्रास में भाई साहब आपका -45 हो जाता है, ठीक है, वेरी वेरी लो यहाँ पे, ठीक है। Trivandrum on the other hand may have a temperature of 22 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम। तो रीजनल वेरिएशंस क्या क्या होंगे? लेट अस नाउ लुक एट प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेन, ठीक है, स्नो, हेल, ठीक है। सो आप देख लो भाई साहब प्रेसिपिटेशन जो है वो किस किस फॉर्मेट में है, इसको लिख लीजिए भाई साहब। प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, प्रेसिपिटेशन मतलब ऊपर से पानी का गिरना, ये पानी अलग अलग फॉर्मेट्स में गिरता है। दिस वाटर इज फॉलिंग इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, समवेयर इज फॉलिंग एज रेन, समवेयर इज फॉलिंग एज हेल एंड समवेयर इज फॉलिंग एज स्नो, ठीक है। Precipitation is in the form of rain at some places, in the form of snow at some places, okay, and the form of hail in some places, okay. Okay, there are variations not only in the form of types of precipitation but also in the amount and the seasonal distribution, ठीक है।
तो अमाउंट एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में, while precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas, तो वहां पे अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयस में, इस पार्ट में अगर आप देखोगे ज्यादा करके प्रेसिपिटेशन आपका कैसा रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रेन्स बट इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। जो रेन बन के नीचे आ रहा होगा वो स्नो ही बन जाएगा। ठीक है, ओके। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी के कंट्री में भाई साहब रेन्स होती है। ठीक है, ओके। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब पूरे साल का प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल इज अराउंड 400 सेंटीमीटर इन मेघालय विच इज वेरी हैवी रेनफॉल। ठीक है, टू लेस देन 10 सेंटीमीटर लद्दाख जो है वो आपका कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ पे भाई साहब 10 सेंटीमीटर से भी लेस है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर से भी लेस है। ओके, सो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, इसको लिख लीजिए, जो मैं बोलूं उसको ही लिखिए, वो इंपॉर्टेंट है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, ज्यादा करके आपका रेनफॉल यहाँ पे जून टू सितंबर होता है। महाराष्ट्र में कब से आता है या मुंबई में? जून जुलाई मतलब कब से? जून में, अराउंड 10th ऑफ जून, दैट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ मॉनसून। ठीक है, मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, but some parts like Tamil Nadu coast gets large portion of its rain during October and November, तो यहाँ पे भाई साहब आपके अक्टूबर और नवंबर में काफी बड़ा रेन होता है। ठीक है, ओके। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस। ठीक है, सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, यहाँ पे ज्यादा सीजनल कॉन्ट्रास्ट होता है। ठीक है, ओके। रेनफॉल डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलोंग द नॉर्दर्न प्लेन, जैसे जैसे हम भाई साहब ईस्ट से वेस्ट में मूव करते हैं इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, द रेनफॉल डिक्रीजेस। ठीक है, these variations have given rise to variety in the lives of people. It is in terms of the food they eat. तो भाई साहब रेनफॉल के वेरिएशंस की वजह से आप देखोगे हमारे जो फूड चॉइसेस है वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो खाना पीना आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, द क्लोथ्स दैट दे वियर, ठीक है, एंड ऑल्सो द हाउसेज दैट दे लिव इन, इट्स ऑल डिफरेंट। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, इसको लिख लीजिए भाई साहब, 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट इन एनी प्लेस। क्लाइमेट को कौन कौन सी चीजें कंट्रोल करती है? देयर आर बेसिक 6 थिंग्स दैट कंट्रोल द क्लाइमेट। ठीक है, क्लियर है? ओके, व्हाट आर दे? लैटिट्यूड, देन वी हैव ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। ये भाई साहब तो लैटिट्यूड बेसिकली होता क्या है, ये समझ लो आपका अर्थ है, ये आपका लॉन्गिट्यूड्स है, दीज आर बेसिकली द लॉन्गिट्यूड्स एंड दीज आर द लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर एन इंडिकेशन ऑफ हाउ क्लोज और फार यू आर फ्रॉम द इक्वेटर। जितना आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे डेजर्ट क्लाइमेट चालू होता जाएगा। इनफैक्ट टॉप नॉर्थ पोल और साउथ पोल में तो एक्सट्रीम ठंडी है क्योंकि वहां पे स्लांटिंग रेज ऑफ सन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैटिट्यूड, इसको लिख लीजिए भाई साहब। ऑल्टीट्यूड भी एक क्लाइमेटिक फैक्टर को डिटरमिन करता है, जितना आप सी लेवल के ऊपर जाते रहते हैं आपका टेम्परेचर गिरता रहता है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, किस टाइप के विंड सिस्टम या प्रेशर सिस्टम को आप बिलोंग करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, आपका समुद्र से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, देन हाउ मेनी ओशन करेंट्स आर देयर, रिलीफ फीचर्स क्या है, आपके लैंडस्केप के फीचर्स क्या है, ऊपर नीचे कैसा है। ठीक है, ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव। लैटिट्यूड क्या हो जाएगा? ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। तो कितना सोलर एनर्जी रिसीव हो रहा है, कर्वेचर ऑफ द अर्थ, दिस इज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड के चलते ये वेरी करता है, इट वेरीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसमें भाई साहब आपके अलग अलग। द सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द इक्वेटोरियल रीजन, हेंस इट इज वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर, इसको लिख लीजिए। इक्वेटोरियल रीजन के आजू बाजू काफी ज्यादा भाई साहब आपका टेम्परेचर रहेगा क्योंकि ऑलमोस्ट डायरेक्ट रेज ऑफ सन आर देयर। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका भाई साहब डायरेक्ट रेज ऑफ सन आर देयर इन द इक्वेटर एंड इट्स रीजन्स। ठीक है, क्लियर है?
whereas poles receive slanting rays. ठीक है, as a result air temperature generally decreases from the equator towards the poles. ठीक है, तो ये भाई साहब डिक्रीज होता है as we go higher in the atmosphere from sea level, air pressure and temperature decreases. तो ये हो गया आपका ऑल्टीट्यूड, इसको लिख लीजिए भाई साहब। जितना आप भाई साहब ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाते रहेंगे, एज एंड व्हेन यू आर मूविंग अप, ठीक है, द प्रेशर, एयर प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर दोनों भी डिक्रीज होता रहेगा। एयर प्रेशर एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है, तो एयर प्रेशर भी गिरता रहेगा और एयर टेम्परेचर भी। as one of the atmosphere becomes less dense and temperature decreases, तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे ये कम होती जाएगी। ठीक है, the atmosphere becomes less dense and the temperature decreases, इसको भी लिख लीजिए। as and when we keep on moving up, ठीक है, the atmosphere becomes less dense, इसकी डेंसिटी डिक्रीज होती रहेगी, and the temperature also decreases। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी डिक्रीज होती रहेगी और ऑब्वियसली टेम्परेचर भी डिक्रीज होती रहेगी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। The hills are therefore cooler during summers. Distance from the sea. कोस्टल एरिया से जितना आप दूर जाएंगे उतना क्या होगा? जैसे कोस्टल एरिया में एक मॉडरेट क्लाइमेट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती और बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं होती, क्योंकि कोस्टल हवाएं जो है ये दोनों को कंट्रोल करती हैं। तो इफ योर डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्टल एरिया इंक्रीजेस, देन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ टेम्परेचर्स विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, जैसे पूना में अगर आप जाएंगे तो अभी बहुत ठंडी है, ठीक है, क्योंकि उसका कोस्टल डिस्टेंस ज्यादा है। और मुंबई में कंपैरेटिवली कम ठंडी लग रही है क्योंकि यहाँ पे आपका कोस्टल इन्फ्लुएंस है। ठीक है, सो एज एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम द कोस्टल एरियाज, डिस्टेंस फ्रॉम द सी आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। कैसे? ड्यूरिंग द डे द लैंड along the coastal line gets heated faster than the sea water, ये ज्यादा फास्ट हीट हो जाता है than sea water, so what will happen, therefore the air on the land becomes hotter and the air pressure is low। तो यहाँ पे लैंड में क्या हो रहा है, लो एयर प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है और इसको रिप्लेस करता हुआ समुद्र का हवा, विच इज बेसिकली कूलर। ठीक है, समुद्र का हवा आपका कूलर है। द सी वाटर गेट्स हीटेड स्लोली एंड दैट इज व्हाई द एयर इज लेस हॉट एंड द एयर प्रेशर इज हाई। ठीक है, तो ये भाई साहब इधर फ्लो होगा, तो ये कंटिन्यूसली होता रहेगा। ये हीट हुआ ऊपर गया, ये वाला भाई साहब इसको रिप्लेस करता रहेगा। तो कंटिन्यूसली व्हाट विल हैपन, द एयर ऑन और above the land will get on heated, it will become less dense, less pressure rises up, it is continuously replaced by high pressure and cool sea air moving to the land। ठीक है,
Okay, so at night what is happening is land cools down faster than the sea. तो ये फटाक से कूल डाउन हो जाता है, तो अभी इधर से इधर हवा आएगी, ठीक है? तो फास्टर देन द सी, तो इसका हाई प्रेशर है, इसका लो प्रेशर है. सो नाउ द विंड विल ब्लो ऑन द अदर एंड, ठीक है? So it will blow from this. Okay, that is why coastal areas have a moderate climate. So when you keep on moving from the coastal area, the temperature will no longer be moderate. As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases, and the people experience extreme weather conditions. The condition is known as continuality. Okay, इसको लिख लीजिए भाई साहब. As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases. ठीक है? जैसे जैसे भाई साहब डिस्टेंस सी से बढ़ता जाता है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस. ठीक है? जो मॉडरेट करता है टेम्परेचर को, वो इन्फ्लुएंस भी कम होता जाएगा. एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. तो लोगों को भाई साहब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एक्सपीरियंस होने लगती हैं. बहुत ज्यादा हॉट या बहुत ज्यादा कोल्ड, ऐसा कंडीशंस एक्सपीरियंस करने लगते हैं लोग. ठीक है? क्लियर है भाई साहब? एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. दिस कंडीशन इज known as continuality. That is very hot during summers and very cold during winters. तो बहुत ज्यादा hotness during summers and very cold during winters. Now this is a relief. ठीक है? Relief मतलब क्या होता है? Landscape. It plays a major role in determining the climate of a place. High mountains act as barriers for hot and cold winds. इसको लिख लीजिए. प्रॉब्लम ये है कि हॉट और कोल्ड विंड्स के लिए तो बैरियर्स हैं, लेकिन कभी कभी मानसून विंड्स के लिए भी ये बैरियर्स हो जाते हैं. ठीक है? हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर मानसून विंड्स एज वेल. ये भी वैसा हो जाता है. हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर हॉट एंड कोल्ड विंड्स. ठीक है? ओके, तो आपका देखो रिलीफ फीचर है, ये हिमालयस है. हिमालयस प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ. तो ये अच्छा है भाई साहब. ठीक है कि कोल्ड विंड से. यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है? जितना भी मानसून विंड आ रहा है भाई साहब, मुंबई में इतनी बारिश हो रही है, लेकिन इधर विदर्भ में वैसा सूखा है. तो महाराष्ट्र के एरिया में ही एक जन भाई साहब डूब रही है बारिश से, और दूसरा इलाका जो है तो सूखा पड़ा. ठीक है? तो कभी कभी ये माउंटेन्स आर गुड एंड समटाइम्स दे क्रिएट रेन शैडो एरियाज. ठीक है? सो हिमालयस प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ. तो दैट इज गुड कि भाई साहब ये कोल्ड विंड्स की चपेट में हम नहीं आ रहे हैं. ठीक है? जो तिब्बत का क्लाइमेट है वही वरना यहाँ पे भी हो जाता था. ठीक है? ओके, द रिलीफ में ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन. कभी कभी प्रेसिपिटेशन भी, जैसे वेस्टर्न घाट्स में यही हो रहा है. हमारा जो वेस्टर्न घाट्स है वो आपके मानसून विंड्स को ब्लॉक कर रहा है, तो इसीलिए आपका ज्यादा बरसात मुंबई जैसे एरिया में हो रहा है. और उधर आप सुनेंगे कि भाई साहब महाराष्ट्र में, विदर्भ में फार्मर्स लोग सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव वेज एंड मीन्स टू प्रोक्योर वाटर एंड रेज इरिगेशन. ठीक है? तो ये एक भाई साहब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इफ माउंटेन्स आर हाई एनफ and lie in the path of rain bearing winds, the windward side gets heavy precipitation. यहाँ पे भाई साहब बहुत बारिश होगी. माउंटेन्स अगर बहुत बड़े हैं तो ये रेन क्लाउडेड विंड्स जो है वो भाई साहब जा नहीं पाएंगे, और यहाँ पे सारी बारिश हो जाएगी. लेकिन उस तरफ क्या हो जाएगा? रेन शैडो. इस तरफ क्या क्रिएट होगा? रेन शैडो एरिया. इसको अपन बोलेंगे रेन शैडो एरिया, जो वेस्टर्न घाट्स में प्राइमरीली होता है. ठीक है? वेस्टर्न घाट्स में यही प्राइमरीली होता है. whereas द लीवर्ड साइड, ये आपका लीवर्ड साइड है, या इसको रेन शैडो एरिया भी बोलेंगे. दैट रिमेन्स ड्राई. ठीक है? तो आपका ये इक्वेटर है. देखिए, ऑन एन ओशन करंट, अभी हम ओशन करंट की बात करेंगे, इज एनी परमानेंट और कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर. तो ये ओशन करंट्स है. ठीक है? ओशन करंट्स में भाई साहब एक परमानेंट वाटर का डायरेक्शन है. तो लेट्स से यहाँ पे ऐसे जा रहा है ये. ठीक है? ओशन करंट्स that originate near the equator and flow towards the poles are called warm currents. इसको लिख लीजिए भाई साहब.
ओशन करेंट्स जो भाई साहब कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहे हैं, नियर द इक्वेटर एंड फ्लो टुवर्ड्स द पोल्स, और जो पोल्स की तरफ फ्लो हो रहे हैं उनको अपन बोलेंगे भाई साहब वार्म करेंट्स, दे आर प्राइमरी नोन एज वार्म करेंट्स. Ocean currents originating near the equator and flowing towards the poles are known as warm currents. Okay, those currents that originate in the high altitude and flow towards the equator are known as cold currents. तो जो हाई ऑल्टीट्यूड में ओरिजिनेट होते हैं, दे फ्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर, दे आर नोन एज कोल्ड करंट्स. इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट. पीछे वाला लिखा क्या भाई साहब? नहीं. So ocean currents that originate near the equator and flow towards the pole. So इक्वेटर में उपज रहे हैं और पोल्स की तरफ फ्लो हो रहे हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? वार्म करेंट्स. एंड दोज विच ओरिजिनेट एट द पोल्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर आर नोन एज कोल्ड करेंट्स. ठीक है, डन 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 भाई साहब. ओके, so the currents that originate in the high altitudes flow towards the equator and these are known as cold currents. इनको अपन बोलते हैं cold currents. Ocean currents are generally named after the region along which they flow. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका भाई साहब एग्जाम्पल है, इसको हम ब्राजीलियन करंट बोलेंगे क्योंकि ये ब्राजील है, और इसको हम बोलेंगे पेरुवियन करंट, along the Peru Islands फ्लो हो रहा है ये. ठीक है, so these are Brazilian currents and Peruvian currents. Ocean currents along with onshore winds affect the climate of coastal areas. इसको लिख लीजिए भाई साहब. ओशन करेंट्स अलोंग विथ ऑनशोर विंड्स, शोर में जो विंड्स हैं, ठीक है, उनके साथ भाई साहब ये क्या बनाते हैं? ठीक है, affect the climate of coastal areas. Ocean currents along with onshore winds affect the climate of coastal areas. For example, any coastal area with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. ठीक है, atmospheric pressure and wind system. The atmospheric pressure and wind system of any area depends on the latitude and altitude of that place. तो जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है एक रीजन में, जनरली आप जितना ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा. ठीक है, पहाड़ों में जितना आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऐसे चिंटू बिंटू पहाड़ नहीं, बड़े बड़े पहाड़. ठीक है, हिमालय की बात कर रहे हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया, किसी भी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड सिस्टम किस पे डिपेंड करेगा? लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ दैट प्लेस. इसको लिख लीजिए भाई साहब. इट विल डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड, किस लैटिट्यूड पे अर्थ में वो प्लेस्ड है और किस ऑल्टीट्यूड पे प्लेस्ड है, कितने हाइट पे प्लेस्ड है. ठीक है, तो लैटिट्यूड एंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ दैट प्लेस. लैटिट्यूड होता है क्या? देखो, दिस इज बेसिकली लैटिट्यूड. ये सन है. 0 डिग्री लैटिट्यूड, दैट इज द इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट थ्रू द ईयर एंड सो टेम्परेचर हियर इज वेरी हाई. तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है? 0 डिग्री लैटिट्यूड पे यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है और इसीलिए भाई साहब आपका टेम्परेचर बहुत हाई है. ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट इज ऑलवेज रिसीव्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेस, इसीलिए हमेशा आपका यहाँ पे टेम्परेचर हाई होंगे, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा. लेकिन इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि यहाँ पे सीज, ओशंस, लेक्स जो भी होंगे उनमें काफी ज्यादा इवेपोरेशन होगा और उस इवेपोरेशन के चलते भाई साहब प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज्यादा होगा. ठीक है, ओके. So 0 degree latitude, that is the equator receives direct sunlight through the year and so the temperatures are very high. As we move, तो आपका भाई साहब इसको लिख लो भाई साहब, या तो ये इंपॉर्टेंट है. जैसे जैसे आप 23.5 डिग्री, तो ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया आपका 23.5 डिग्री साउथ. ये हो गया आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया आपका 66.5 डिग्री साउथ और ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 0 डिग्री. बाकी सारे और भी लैटिट्यूड्स हैं. ठीक है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड, दैट इज इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट. अभी जैसे हम मूव कर रहे हैं कहां पे भाई साहब? एज वी मूव फ्रॉम 0 to 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, दीज लैटिट्यूड्स आल्सो रिसीव क्वाइट वर्टिकल रेज. थोड़ा सा कम, लेकिन ये भी लगभग
कैसा वर्टिकल रेज रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। The amount of solar energy received varies according to the latitude. जैसा जैसा लैटिट्यूड रहेगा वैसा वैसा सोलर एनर्जी, तो जैसे जैसे आप भाई साहब ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, the amount of solar energy that you are receiving is going to become less and less. The rays of light will no longer be direct, they will be slanting rays. यहाँ पे तो भाई साहब पूरा बर्फ हो जाएगा क्योंकि स्लांटिंग रेज है, एंटार्क्टिका वगैरह सब इधर है, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट सनलाइट मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए वो स्लांटिंग रेज हो रहा है। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। So the amount of solar energy, as we move to still higher altitudes, the temperature goes on decreasing as the sun rays received here are quite slanting, या पे slanting rays receive होंगे भाई साहब, ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है भाई साहब, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसको लिख लीजिए भाई साहब। एज पर लैटिट्यूड वर्ल्ड का डिवीजन हो गया भाई साहब प्रेशर बेल्ट्स में, एज पर लैटिट्यूड द वर्ल्ड गेट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, एज पर लैटिट्यूड, तो ये आ गया आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर आर इनवर्सली रिलेटेड, तो टेम्परेचर और एयर प्रेशर आपका इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब कैसा है देखो, टेम्परेचर इज इनवर्सली रिलेटेड टू एयर प्रेशर। अगर आपका एयर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिप होगा, अगर आपका एयर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर आर इनवर्सली रिलेटेड, इसको लिख लीजिए, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर इज हाई द एयर प्रेशर इज लो, एंड व्हेन द टेम्परेचर इज लो द एयर प्रेशर इज हाई, ठीक है। ओके, सो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर विल डिप, ठीक है। एज वी गो टू हायर ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड द एयर प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा एयर प्रेशर भी भाई साहब डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, ओके। तो लैटिट्यूड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्रोसेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, हमारे इंडिया में क्या पास हो रहा है भाई साहब, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 23 है ना हाफ डिग्री क्या साउथ, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ पास हो रही है। तो फ्रॉम इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ विच इज बेसिकली एक डेजर्ट एरिया है, टू मिजोरम, रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट, ठीक है। दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। तो भाई साहब ये पूरा पोर्शन कहां पे आ रहा है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आ रहा है कि नहीं, तो ये ट्रॉपिकल एरिया में हो जाएगा, है ना। वर्ल्ड में भाई साहब ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ये हो गया इक्वेटर, तो ये वाला जो पोर्शन है वो कहां पे आएगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। ये वाला जो पोर्शन है वो कहां पे आएगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री इंडिया इज लाइंग इन दिस पोर्शन बिकॉज ऑफ विच इट इज इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इक्वेटर इज नॉट पासिंग थ्रू अस डेफिनेटली, बट 66.5 डिग्री साउथ और इक्वेटर के बीच में हमारा मेजर पोर्शन लाई करता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हाफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया, एंड ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक्स। तो ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है, ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, ओके। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल, बिकॉज दिस इज द क्लाइमेट डिटरमिनिंग फैक्टर ऑफ इंडिया। यही आपका इंडिया का क्लाइमेट डिटरमाइनिंग फैक्टर है, मेजरली आपका ये क्लाइमेट डिटरमाइनिंग फैक्टर है इन इंडिया। ठीक है, and the north of the tropic lies in the subtropics, okay, therefore India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate। तो किस तरह का क्लाइमेट है हमारा, किस तरह का क्लाइमेट है भाई साहब, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, ठीक है। तो इंडिया में भाई साहब किस तरह का क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। So altitude, India has mountains to the north which have an average height of around 6,000 meters। तो ये आपके हिमालयस जो है इनका एवरेज हाइट 6,000 मीटर्स है, कहीं पे भाई साहब 8,000 से ज्यादा है, कहीं पे भाई साहब 2,000 से कम है, लेकिन एवरेज हाइट आपका 6,000 मीटर्स है, ठीक है, ओके। इट हैज वास्ट कोस्टल एरिया, ये आपका भाई साहब ह्यूज कोस्टल एरिया, अराउंड एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर्स वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन, मतलब सी लेवल से जितना हाइट है वो ज्यादा से ज्यादा 30 मीटर्स है, ठीक है, ओके। वास्ट कोस्टल एरिया, द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया इज अराउंड 7,500 किलोमीटर्स, ठीक है।
The Himalayas prevent the cold winds from the Central Asia from entering the subcontinent. It is because of the mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winters as compared to Central Asia. Central Asia में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ, ठीक है, और मतलब स्नोई एरिया हो जाता है. हमारे यहाँ पे हिमालयस के लिए हमारी जो ठंडी है वो थोड़ी सी कम होती है. फिर भी अगर आप नॉर्थ में भी चले जाओगे तो लोग भाई साहब करकरा रहे हैं सर्दी में, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडी है. फिर भी हम इसको बोलेंगे माइल्डर. माइल्डर मतलब हमारा विंटर जो है तो थोड़ा सा कम है than Central Asia. ठीक है, the winters that are experienced by us is milder than what is experienced by people in Central Asia. ये थर्ड वाला सोच दे दो ना, थर्ड वाला. हाँ, ठीक है, ओके. Pressure winds. The climate and weather conditions in India are governed by following atmospheric conditions: pressure and surface winds, upper air circulation, western cyclonic disturbances and tropical cyclones. ठीक है, तो ये आपके भाई साहब, ये इसको लिख लीजिए भाई साहब, क्या क्या आपके इंडिया में इंपैक्ट होते हैं. ठीक है, द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस, हमारे जो क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस है इंडिया में वो किन चीजों से इंपैक्ट होते हैं. इन इंडिया आर गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस: प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, upper air circulation and western cyclonic disturbances and tropical cyclones. जल्दी लिखिए फटाफट, क्विक क्विक. तुम्हारा प्रेसिपिटेशन हो गया है ना? और अर्बनाइजेशन नहीं, ओके. और प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर ये भी हो चुका है ना? प्रॉपर्टी ऑफ सी वाटर नहीं हुआ है? मुझे तो लगता है ये तो हो चुका है भाई साहब. एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नहीं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में यूनाइटेड नेशंस नहीं हुआ. चलिए, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया है. और हेरिडिटी एंड वेरिएशन ये नहीं हुआ है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया है ना? कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये हो गया है. क्वाड्रिलेटरल्स हो गया है. सर्कल्स हो गया है. शेन प्रोपोर्शन हो गया है. ओके, इसमें प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ है ना? प्रेसिपिटेशन हो गया है. ओके, अर्बनाइजेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो चुकी है ना? हाँ, पॉलिनोमियल्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया है. ओके, अर्बनाइजेशन ये नहीं हुआ है ना? टूरिज्म नहीं हुआ है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर जहां तक मेरे को लगता है हो गया है. पॉलिटिकल साइंस यूनाइटेड नेशंस हो गया, राइट? अच्छा, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है. इंडस्ट्री एंड ट्रेड नहीं हुआ है ना? साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, हिस्ट्री में. एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ओके. लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑब्जर्विंग टेलीस्कोप्स, लाइफ प्रोसेसेस हो गया है. ऑब्जर्विंग टेलीस्कोप्स नहीं हुआ है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया. कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया. ठीक है, ओके. सो आपका भाई साहब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ओके ओके ओके. प्लैनेटरी विंड्स भाई साहब क्या क्या है? दीज विंड्स ब्लो ऑल अराउंड द ईयर, दे ऑक्यूपाई एन एक्सटेंसिव एरिया ऑन द अर्थ. ठीक है, ये प्लैनेटरी विंड्स भाई साहब दे ऑक्यूपाई एन एक्सटेंसिव, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्लैनेटरी विंड्स. ये पूरे साल चलते हैं. ठीक है, सब पोलर, ये लिखा था भाई साहब आप लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे आपके ग्राफ्स, इस पे आपके डायग्राम्स आ सकते हैं. इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ये. मिड लैटिट्यूड हाई प्रेशर बेल्ट, मिड लैटिट्यूड हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. ठीक है, इसके वजह से ही प्लैनेटरी विंड्स क्रिएट होते हैं. हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में जो भी विंड आएगा उसको भाई साहब एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. ठीक है, प्लैनेटरी विंड्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स. द ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द प्लैनेटरी विंड्स. आप देख लो भाई साहब यहाँ पे, ये आपके वेस्टर्लीज हैं. ठीक है, these are easterlies, then again easterlies and then westerlies. तो easterlies, westerlies and the polar winds, ये आपके polar winds में. ठीक है, so तीन टाइप के आपके planetary winds क्या क्या हो गए? Easterlies, westerlies and the polar winds. So the three types of planetary winds that we have are the easterlies, westerlies and the polar winds. और ये आपके pressure difference के वजह से हो रहे हैं.
जब भी दो जगह पे प्रेशर डिफरेंस होगा विंड्स क्रिएट होंगी एंड विंड्स आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हाई टू लोअर प्रेशर रीजन्स, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका भाई साहब ये हाई प्रेशर बेल्ट है, इसीलिए लो प्रेशर की तरफ मूव कर रहा है। मिड लैटिट्यूड हाई प्रेशर बेल्ट है, ये लोअर प्रेशर बेल्ट की तरफ। ये लोअर प्रेशर बेल्ट क्यों है? क्योंकि इक्वेटर में हाई टेम्परेचर्स हैं, हाई टेम्परेचर्स की वजह से क्या हो रहा है, एयर एक्सपैंड हो रहा है, लेस डेंसिटी हो रही है, ऊपर जा रही है, तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब इक्वेटोरियल रीजन में एज कंपेयर टू दिस रीजन लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसलिए winds are continuously moving towards the equator. They are moving from mid latitudinal high pressure belt to the equator. So this is creating the easterlies. ये ऐसे मूव होंगे भाई साहब। और ये ऐसे क्यों मूव हो रहे हैं? क्योंकि अर्थ आपका वैसा घूम रहा है, ठीक है, वो घूम रहा है ऐसा, इसीलिए उसको घुमा रहा है, ठीक है। मूव तो सीधा भी मूव हो सकते हैं ना, ऐसा सीधा भी मूव हो सकते हैं, टेढ़ा क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रहा है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉजिंग देम टू मूव लाइक दिस। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे आप देखो ऐसे सीधा जा रहे हैं, जैसे मतलब ऐसे ऋषि रंजीत सिंह सीधा जा रहा है, लेकिन अब ईएस को धक्का मार रहा है, लेट्स से, तो ये कैसे, मतलब इसको पहुंचना रहेगा इधर, लेकिन क्योंकि ये धक्का मार रहा है तो ये जाकर पहुंचेगा इधर। दैट इज हाउ इट इज। समझ में आ रही है? एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसको कांस्टेंट धक्का मिल रहा है तो ये जाकर ऐसे पहुंचेगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि अर्थ घूम रहा है इसीलिए ये ईस्टर्लीज ऐसे घूम रहे हैं, अदरवाइज दे शुड हैव रीच परपेंडिकुलर, अगर अर्थ नहीं घूमता था तो, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब सब लो प्रेशर बेल्ट, ये और ज्यादा लो प्रेशर बेल्ट है, तो इसके हिसाब से ये वाला हाइयर प्रेशर में है, ये वाला लोअर प्रेशर में है, और जो भी हाइयर प्रेशर में होगा वहां पे क्या होगा, विंड ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर में मूव करेगा, ठीक है। तो इधर से भाई साहब इधर मूव कर रहा है, फिर इधर से इधर मूव कर रहा है। सो वेस्टर्ली देन वी हैव द पोलर विंड्स आर गोइंग from this to the sub low pressure belt, polar winds are blowing from this to the sub low pressure belt and so on and so forth, ठीक है। तो ये आपके भाई साहब these winds blow from the mid latitudinal planetary winds high pressure belt to the equatorial low pressure belt, ठीक है। तो ये भाई साहब आपके ईस्टर्लीज हो गए, दे जनरली ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द ईस्टर्लीज। हम इनको क्यों ईस्टर्लीज बोल रहे हैं? बिकॉज देयर डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ओके, these winds generally blow regularly from the mid-latitudinal region, high pressure to the subpolar pressure belt. इधर मूव कर रहे हैं। In both the hemispheres, these winds blow from west to east. तो west to east blow कर रहे हैं, that is why they are known as the westerlies. ठीक है? Polar high pressure belt, winds that blow from polar high pressure belts to the subpolar low pressure belts are called as polar winds. ठीक है? तो polar high pressure belts है ये, और जब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इनको अपन बोलेंगे पोलर विंड्स, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ दीज विंड्स इज जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट है ये भाई साहब, ठीक है। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, इसको लिख लीजिए भाई साहब। इंडिया कहां पे लाई कर रहा है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट पे जो विंड्स मूव कर रहे हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे मूव कर रहे हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब? इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। These winds originate from the subtropical high pressure belt to the northern hemisphere. तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहां पे जा रही है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दे ब्लो साउथ, get deflected to the right due to Coriolis force and move towards the equatorial pressure area. This is named after a scientist, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई साहब। दे ब्लो साउथ, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट, ठीक है, दे ब्लो साउथ, गेट रिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू Coriolis force and move on towards the equatorial low pressure area. ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करते हैं।
हो गया, डन डन डन। ओके, कोरियोलिस फोर्स है। कोरियोलिस फोर्स होता क्या है? एपरेंट फोर्स कॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से एक एपरेंट फोर्स। एपरेंट फोर्स मतलब क्या? देखो, जैसे ऋषि रंजीत सिंह भाई साहब ऐसे जा रहा था और इस विदित ने इसको धक्का मारा, ऐसे ऐसे इसको धक्का मारता जा रहा है, तो ये भाई साहब ऐसे पहुंच रहा है, तो ये एपरेंट फोर्स हो गया। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज दिस, बट हाउएवर ड्यू टू द पुश इट हैज रीच्ड हियर। तो इसीलिए विंड्स तो ऐसे परपेंडिकुलर जाने चाहिए, लेकिन ये इस तरह से पूरा रहा है क्योंकि आपका भाई साहब अर्थ घूम रहा है। इसको लिख लीजिए, एन एपरेंट फोर्स कॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। एपरेंट फोर्स, एक्चुअल में फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि अर्थ घूम रहा है इसकी वजह से ये फोर्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग, दिस फोर्स इज गेटिंग क्रिएटेड। दिस इज नोन एज एपरेंट फोर्स। Winds blow across Earth from high pressure systems to low pressure systems. However, winds do not travel in a straight line. तो winds भाई साहब आपके straight line में travel नहीं होते हैं. In the northern hemisphere, winds from high pressure systems move to low pressure systems on the right. तो high pressure system से भाई साहब low pressure systems में ये move हो रहे हैं. In the southern hemisphere, winds from high pressure systems move to low pressure systems to the left. तो आपके देखो high pressure systems से low pressure systems में move हो रहे हैं. ठीक है? Okay. So this is how the entire thing. It is also known as Farrell's law. ठीक है, ये आपका फेरेल्स लॉ है। द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड। तो ये भाई साहब इधर से ओरिजिनेट हो रहे हैं और इधर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इक्वेटर तक जाएंगे ये ऐसे ही। ठीक है, दे विल गो टू द इक्वेटर लाइक दिस। ओके, सो दीज विंड्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर। इनमें भाई साहब मॉइस्चर कहां से होगा? क्योंकि ये ओरिजिनेट कहां पे हो रहे हैं? लैंड पे ही हो रहे हैं, तो लैंड से कितना ही मॉइस्चर ये कैरी करेंगे। ठीक है, दे डू नॉट कैरी मच ऑफ मॉइस्चर। ओके, देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन। Hence, India should have been an arid land, but it is not so. ठीक है, ये arid land होने चाहिए। The pressure and wind conditions over India are unique. ठीक है, तो ये high pressure area है। During winter, there is a high pressure area north of the Himalayas. यहाँ पे भाई साहब high pressure area है, ठीक है, north of the Himalayas. यार, so during winter, there is a high pressure area north of the Himalayas. Cold winds blow from this region to the low pressure areas over the oceans to the south. यहाँ पे cold winds ऐसे blow कर रहे हैं, ठीक है? Okay. In summer, a low pressure area develops over interior Asia as well as over northwestern India. This causes a complete reversal of the direction of winds during summer. तो आपका भाई साहब समर में क्या हो जाएगा? इधर से विंड जाने लगेगा, ठीक है? यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और ये जब समर में इधर से जाएगा तो ये क्या करेगा? देखो, पहले ये हाई प्रेशर एरिया था, इधर से विंड इधर जा रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये रेंज नहीं ला रहा है। लेकिन अभी ये लो प्रेशर हो गया है और विंड जैसे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जैसे इधर से जाएंगे तो कोस्टल एरिया में ऊपर काफी पानी जमा होता है जिसको ये लेकर जाएंगे, एंड दैट इज गोइंग टू कॉज रेन्स। ठीक है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। ठीक है, crosses the equator and turns right towards the low pressure area over the Indian subcontinent. ये भाई साहब ऐसे क्रॉस करके इधर जा रहा है और यही हमको ज्यादा करके मानसून विंड्स देता है। ठीक है, these are known as southwest monsoon winds. इनको हम southwest, the winds blow over the warm oceans, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India. यहां से हमको सबसे ज्यादा रेनफॉल मिलता है, इंक्लूडिंग अस, दैट इज पीपल हु आर स्टेइंग इन महाराष्ट्र एंड मुंबई। ठीक है, the upper air circulation in this region is dominated by a westerly flow. तो यहाँ पे भाई साहब एक westerly flow है, the upper air circulation in this region. Okay, an important component of this flow is the jet system, jet stream. ये jet stream है भाई साहब, ठीक है? These are narrow belt of high altitude over 12,000 meter westerly winds in the troposphere. ये भाई साहब आपका, और their speed varies from about 110 kilometers per hour in summer to about 184 kilometers per hour in winter. ठीक है, a number of separate jet streams have been identified. तो बहुत सारे jet streams को हमने identify किया है। ठीक है, the most constant are the mid latitude and subtropical jet streams. ठीक है, ये jet streams हैं, the jet streams are located approximately over 27 to 30 degree north latitude. इतने latitude पे ये located होते हैं। Okay, therefore they are also known as subtropical westerly jet streams. Over India, these jet streams blow south of the Himalayas all through the year except in summer.
The western cyclonic disturbances experienced in the north and northwestern parts of the country are brought in by this westerly flow. काफी बार ऐसा भी होता है. In summer, the subtropical westerly jet stream moves north of the Himalayas with the apparent movement of the sun. An easterly jet stream called the subtropical easterly jet stream blows over peninsular India approximately over 14 degree north during the summer months. ठीक है. तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस भाई साहब क्या हो जाएंगे? द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमिना ऑफ विंटर मंथ्स brought in by westerly flow from Mediterranean region. यहाँ पे भाई साहब मेडिटेरियन रीजन से आ रहा है. वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं आर वेदर फिनोमिना ऑफ विंटर मंथ्स brought in by westerly flow of Mediterranean. ये मेडिटेरियन सी से आ रहा है. एक्चुअली मेडिटेरियन सी आपका ऑलमोस्ट एक ओशन की तरह है. They usually influence the weather of north and northwestern regions of India. Tropical cyclones occur during the monsoon as well as October, November and are now a part of the easterly flow. तो आपको ऐसे छोटे छोटे मानसून दिखेंगे, बहुत ज्यादा सॉरी साइक्लोन्स दिखेंगे. These cyclones are not very heavy, लेकिन थोड़े थोड़े दिखेंगे आपको ईस्टर्ली फ्लो में. ठीक है. These disturbances affect the coastal regions of the country. The Indian monsoon, the climate of India is strongly influenced by the monsoon winds. ठीक है. monsoon wind से बहुत ज्यादा influence होता है. The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomena of monsoon. They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of winds. तो ये भाई साहब sailing ships से आए थे at the mercy of winds. The Arabs who had also come to India, ठीक है, Arabs who had also come to India as traders named this seasonal reversal of the wind system as monsoon. इन्होंने भाई साहब monsoon नाम दिया था इसका. ठीक है. Okay. The monsoons are experienced in the tropical area roughly between आपका भाई साहब 20 degree north and 20 degree south. ठीक है. To understand the mechanism of the monsoons, the following facts are important. The differential heating and cooling of land and water creates low pressure of the landmass of India, while the seas around experience a comparatively high pressure. Okay. The important lines of the globe are equator, subtropical high pressure belt. There is 23.5 degree north, subtropical high pressure belt 23.5 degree south, और इसके बाद आएगा भाई साहब सब पोलर रीजन्स, subpolar low pressure belt that starts from approximately 66.5 degree north and this starts from approximately 66.5 degree south. Okay. So this region is called the tropical region. Subtropical high pressure belt से subtropical high pressure belt 23.5 degree north से 23.5 degree south तक ये वाला जो region है इसको अपन क्या बोलेंगे? Tropical region. Since equator is a low pressure belt, winds from subtropical high pressure belt move towards the equator. These winds are known as trade winds. इसको लिख लीजिए भाई साहब, इसका नाम है भाई साहब ट्रेड विंड्स. ठीक है. तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो इक्वेटर की तरफ मूव करे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो इक्वेटर की तरफ मूव करें उनको अपने क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज ट्रेड विंड्स. इन्हीं को भाई साहब अपन क्या बोलेंगे? ट्रेड विंड्स. These are known as trade winds. ठीक है. ओके ओके ओके. तो ITCZ इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? These winds converge at the equator. इक्वेटर को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? ITCZ zone. इसको भी लिख लीजिए. The ITCZ zone. इसमें काफी क्वेश्चंस बनते हैं. These trade winds actually मतलब इधर से आया और ये converge हो गया. They are coming from two different directions and they are converging at the equator. So this convergence is known as ITCZ zone. This is known as ITCZ zone, intratropical convergence zone. This is intratropical convergence zone. ITCZ is known as intratropical convergence zone. So this is known as intratropical convergence zone. The ITCZ zone keeps shifting towards northern and southern hemisphere. ठीक है. तो northern और southern hemisphere में move करता रहता है. When the apparent movement of the sun is in the north, the ITCZ zone shifts north of the equator. ठीक है. जब भाई साहब इधर होता है, when the apparent movement of the sun is in the north, मतलब थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ है सन अभी, थोड़ा सा. ठीक है.
इसको लिख लीजिए, when the apparent movement of the sun is in the north, the ITCZ zone also moves a little towards the north. चलिए फटाफट लिख लीजिए भाई साहब इसको, when the apparent movement of the sun is in the north, the ITCZ zone shifts north of equator. ये north of equator में shift करेगा. When the apparent movement of the sun is in the south, the ITCZ zone shifts south of equator. जब apparent movement मतलब थोड़ा सा movement आपका sun का north की तरफ है, तो accordingly the ITCZ zone will move a little towards the north, and when when the apparent movement of the sun is towards the south, the ITCZ zone moves towards the south of equator. This is the equatorial trough, normally positioned about 5 degree north of the equator. It is also known as the monsoon trough during the monsoon season. तो ये भाई साहब, ये जो आपका 5 डिग्री है, देखो ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, इक्वेटोरियल ट्रफ ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर ओवर द गंगा प्लेन, ये गंगा प्लेन की तरफ मूव करता है भाई साहब, ठीक है, ये जो शिफ्ट हुआ. द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया east of Madagascar, approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. Okay. At this time, there is low pressure around India. Sorry, low pressure around India. The intensity and position of this high pressure area affects the Indian monsoon. ये भाई साहब Indian monsoon को affect करेगा, which results in strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau. ये Tibetan plateau है basically, low pressure create हो रहा है भाई साहब at about 9 kilometer above sea level. ठीक है. So the movement of the westerly jet stream to the north of Himalayas, ये north of Himalayas move हो रहे हैं, and the presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during summer. ठीक है. Apart from this, it has also been noticed that changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoon. ठीक है. तो यहाँ पे pressure conditions भी change होते हैं southern area में. Southern oscillation. During normal conditions in the eastern Pacific Ocean, due to cold Peruvian current, there is high pressure. यहाँ पे भाई साहब high pressure develop होता है, whereas the eastern Indian Ocean experiences low pressure. But during certain years of pressure condition reverses, so it is seen that the eastern side of Pacific Ocean experiences lower pressure as compared to the Indian Ocean, Eastern Indian Ocean. ठीक है. Thus, this reversal in pressure conditions is known as southern oscillation. इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट. This reversal in pressure conditions, आपके जो pressure conditions में reversal हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, southern oscillation. इतना है तुमको कि नहीं है? अरे क्लाइमेट तक है, लेकिन क्लाइमेट में इतना पूरा है क्या, नहीं है, मुझे नहीं लगता है. किसी के पास बुक है क्या? नहीं होगा शायद इतना. हाँ, टेक्स्ट बुक. नहीं है भाई साहब इतना तुम्हारा. लो प्रेशर, हाई प्रेशर, सडन ऑसिलेशन, क्रियोलिस फ्लो वगैरह नहीं है. दिस इज नॉट देयर. एल निको इफेक्ट भी नहीं है तुमको. हाँ, ये सीजन है तुमको. ठीक है.
कोई क्रॉलिस इफेक्ट वगैरह नहीं है तुमको, सीजन से, ठीक है। द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर, तो देयर इज अ वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न, तो काफी सारा रेनफॉल पैटर्न में आपका वेरिएशन है। तो द कोस्टल एरियाज जो है आपके, ठीक है, दे डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता है। फोर मेन सीजन इन इंडिया कैन बी हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून एंड कोल्ड वेदर सीजन, इसको लिख लीजिए भाई साहब। ये चार आपके मेन सीजन हो गए इंडिया में। द हॉट वेदर सीजन, डन डन डन। ओके, ये आपके चार सीजन्स हो गए। द अर्थ नॉट ओनली रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस बट आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो अर्थ भाई साहब से रोटेट ही नहीं कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, ठीक है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स। टू अंडरस्टैंड द सीजन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द फोर पोजीशंस ऑफ द अर्थ। तो ये हो गया आपका 21st ऑफ मार्च का पोजीशन, ठीक है, 21st ऑफ जून, देन वी हैव 23rd ऑफ सितंबर एंड देन फाइनली 22nd ऑफ दिसंबर। ये आपके चार पोजीशंस हैं, ठीक है। So on 21st of March, vertical rays of the sun falls on the equator. लगभग पूरे ईयर में ही आपके vertical rays of the sun will fall on the equator. It is falling on the equator. From this day onwards, the northern hemisphere tilts more towards the sun. तो आपका देखो from this day यहां से लेकर यहां तक आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अभी देखो अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहां, यहाँ पे, तो इसका देखो ज्यादा अभी सन की तरफ एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम 21st ऑफ मार्च टिल 21st ऑफ जून, फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स मोर टुवर्ड्स द सन। आप किस हेमिस्फीयर को बिलोंग करते हैं? आप किस हेमिस्फीयर को बिलोंग करते हैं? सदर्न कहां होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को बिलोंग करते हैं। ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के अबव जो होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे जो होगा वो सदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या आप इक्वेटर के ऊपर हैं? यस, तो यू बिलोंग टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, ये ऐसे आ रहा है ना भाई साहब, देखो, तो सन को ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, इसीलिए ये हमारा जो टाइम है 21st ऑफ मार्च से लगभग 21st ऑफ जून तक, ये हमारा समर सीजन है। दिस इज हाउ वी गेट द समर सीजन। फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर tilts more towards the sun, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की टिल्टिंग सन की तरफ ज्यादा होगी। दैट इज द रीजन वी गेट आवर समर क्लाइमेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, इट इज बिकॉज द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इज टुवर्ड्स नॉर्थ। एपरेंट मूवमेंट मतलब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सन नहीं मूव कर रहा है, हम मूव कर रहे हैं। द सन इज नॉट मूविंग बट इट अपीयर्स एज इफ द सन इज मूविंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एपरेंट मूवमेंट, ठीक है। इट इज बिकॉज द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इज टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, on 21st of March, the vertical rays of the sun falls on the equator. 21st of March, vertical rays. On 21st of June, vertical rays of the sun falls on the Tropic of Cancer. ठीक है, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21st of March, सीधा सीधा रेस कहां पे आएगा? इक्वेटर पे आएगा। On 21st of March, the vertical rays of the sun fall on the equator, and on the 21st of June, the vertical rays of the sun fall on the Tropic of Cancer. तो ये 21st ऑफ मार्च से भाई साहब 21st ऑफ जून को हमारा हॉट क्लाइमेट रहता है, ठीक है, समर क्लाइमेट रहता है। ऑन 23rd ऑफ सितंबर वर्टिकल रेस फॉल ऑन द इक्वेटर, फिर से भाई साहब इक्वेटर में वापस। ऑन 22nd ऑफ दिसंबर वर्टिकल रेस फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। 4 दिन हो गए आपके। 21st ऑफ मार्च कहां पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, फिर 21st ऑफ जून इक्वेटर पे, फिर 21st ऑफ सितंबर, सॉरी 21st ऑफ मार्च इक्वेटर पे, 21st ऑफ जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, 23rd ऑफ सितंबर अगेन इक्वेटर पे, और 22nd ऑफ दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सो दीज आर द फोर मेजर थिंग्स। ऑन 21st ऑफ मार्च अगेन फिर से भाई साहब साइकिल रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे 21st ऑफ मार्च में आ रहा है भाई साहब वापस,
फ्रॉम मार्च टू मे इट इज हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। इसको लिख लीजिए भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिलोंग करते हैं। सो ऑब्वियसली फ्रॉम मार्च टू मे we will experience the hot weather season, which is the summer season. Due to apparent northward movement of the sun, the global heat belt shifts northward. तो आपका global heat belt किधर shift हो जाएगा? Northward. In the northern hemisphere, the days become longer and the nights become shorter. तो northern hemisphere में क्या हो जाएगा? आपका days become longer and the nights become shorter. ठीक है? तो आपके दिन बड़े होने लगते हैं। आप देखो बोलते हैं ना 25th ऑफ दिसंबर को आप क्या बोलते हैं? बड़ा दिन। क्रिसमस है लेकिन वो बड़ा दिन मानते हैं, क्योंकि उस दिन से आपके भाई साहब डेज का लेंथ बढ़ने लगता है। ठीक है, राइट टिल 21st ऑफ मार्च या जून तक। ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डेज बिकम लॉन्गर एंड द नाइट्स बिकम शॉर्टर। ठीक है, नाइट्स का लेंथ जो है तो वो शॉर्ट होने लगता है और डेज का लेंथ जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, दैट इज हाउ इट हैपेंस।
ओके, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डेज बिकम लॉन्गर एंड द नाइट्स बिकम शॉर्टर। ठीक है, तो आपका डेज लॉन्गर हो जाएगा, नाइट्स आपका शॉर्टर हो जाएगा। ओके, जस्ट एज वी एक्सपीरियंस समर इन द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, वी एक्सपीरियंस रेनी सीजन इन द सेकंड पोजीशन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेनी सीजन आपका एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, 21 जून से 23 सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून इन द थर्ड पोजीशन। इसके बाद क्या है भाई साहब, आपका रिट्रीटिंग मानसून है। रिट्रीटिंग मानसून मतलब समझते हैं जब आपके मानसून क्लाउड्स वापस जा रहे हैं, ये कुछ दिनों पहले आपका बादल गरज रहा था, थोड़ा सा बारिश शाम के टाइम होता है, उसको अपन बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ये मानसून क्लाउड्स अभी वापस जा रहे हैं। ठीक है, ओके, सो ये पोजीशन है भाई साहब, दिस इज बेसिकली विंटर। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, ये आपका रेनी सीजन है, ये पीरियड आपका समर सीजन में है, ये पीरियड आपका विंटर सीजन में है, एंड दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। इसके बीच में जो मैंने आपको क्रियोलिस लॉ वगैरह पढ़ा, वो कुछ भी आपके कोर्स में नहीं है, तो यू कैन बेसिकली डिलीट दैट, दिस इज इन द कोर्स। ठीक है,
मेरे को ये याद इसलिए आया क्योंकि पिछली बार के 9th बैच ने मुझे बोला था सर ये वाला नहीं है शायद हमारा, तो लेकिन आपको मालूम ही नहीं क्या है क्या नहीं है। बहुत बढ़िया भाई साहब, मेरे को बुक चेक करना पड़ा। तुम्हारे स्कूल में नहीं हुआ है क्या चैप्टर? सिखाया नहीं है, सीख कर भी क्या कर लेंगे। यस, लेकिन तुम्हारे बुक में नहीं है। हाँ हाँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे तो आपकी मैम ने भी पढ़ा दिया होगा, क्योंकि जो प्रीवियस एनसीईआरटी की बुक में है उसमें था। दिखाओ तो एनसीईआरटी की बुक में मैं देख रहा था, कोई लॉ नहीं है आपका। नहीं, ये नई वाली है, इसमें नहीं है। अगर होगा तो फिर से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पढ़ा देंगे, क्या पढ़ा ही दिया है। देखो यहाँ पे आपका हॉट वेदर सीजन है, द सीजन है, एडवांसिंग मानसून है, ये सब कुछ है। कहीं पे भी नहीं है कोई लॉ वगैरह, जेट मानसून वगैरह ये सब कुछ भी नहीं है। हो गया आप लोगों का? 1 और 2 में सेग्रीगेट करके दीजिए फटाक से, फटाक से देना है। ठीक है, आप लोग घर जाइए भाई साहब, चलेगा।